English syllabus for periodic Pratham, test you 1. can read in your mind, bacha. Clear? And if your audios are on, please put off your audios. Already there is so much of noise in the school itself. मैम इतना ही है ना कि अभी है See, only this much is said. So today we'll just complete unit 2 and then we'll discuss whatever doubts you are having. Okay? ओके मैम Yeah. Even you can take the click of the syllabus and send in your group so that those who are absent or those who have not written, they'll also come to know what is the exact syllabus. Got it? So please someone take the image and send it in your group. Grade 7 group में भेज दीजिए. Okay, ma'am, I will send. Okay. मैम हाँ बोलिए. मैम मैं प्रोफाइल आपने कराया नहीं है. जी मैंने करवाया है. करवाया हमारी जो बुक के आगे माय नेम माय फादर्स नेम मदर्स नेम वगैरह वगैरह वही है. हाँ यस मैम यस. वेरी गुड. If you are done, just let me know so that accordingly I'll turn off the screen. मैम हो गया. Till then I'll take your attendance also. And let your textbooks be with you, English textbooks. This is grade 7. Are you done with it? Yes ma'am. Okay. Everyone is done? Yes, ma'am. So I'm stopping this screen. Uh, 15. C is there. Euglimbachia. Yes मैम. Priyanshi is there. Priyanshi.
Where is Priyanshi? Please share the syllabus copy with your group because Vyom is joining now. Okay? So that those who have missed the English syllabus copy, they should also get. मैम किसी ने सेंड किया ग्रुप में 7th के. Okay, no problem. Yeah. मैम मारुति सेंड कर दिया. ठीक है. प्रियांशी नहीं दिख रही है, प्रियांशी नहीं आए हैं. मारुत, प्रथम, पटेल, केया. Yes, ma'am. Now look here, only Priyanshi is not there. Rest everyone is there. सिर्फ प्रियांशी नहीं है, ठीक है? बाकी के सारे बच्चे आ गए. चलिए. Let us move further now. So we were towards the English textbook. Please open your English textbook. Let us open to page number 21. Sorry, we were on page number 21. I have last period I have completed the poem on It's a Puzzle by Alan Hellberg, where I have taught you the feelings of a friend for another friend, or what one friend is feeling of her friend, what she is feeling about her friend, and they are not talking to each other, they are having their own friends, different friends, and then they are not sharing what is going on in their minds. Okay, has everyone understood what I have explained you that day, the poem activity number 8? Have you gone through it? समझ में आया आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we will move forward to activity number 9. Even I have asked you to prepare conversation and dialogues between the 4 friends, thinking that the 4 friends are meeting at a tea stall. चाय पीने के लिए आती हैं चारों जने. Means Tracy Hackett, जो writer हैं, she is coming with her friend Tracy Hackett. Sorry, the writer is coming with Alice Banks and her friend is coming with Tracy Hackett. Tracy Hackett. So all 4 are meeting at the tea stall, and it is a coincidence. It is a coincidence. It is not the planned meeting. Okay, that means it is surprise meeting. Okay, so you have to imagine that all the 4 friends are meeting, and what conversation or what dialogues, किस तरह से वो बात करेंगे, कौन क्या बोलेगा, ठीक है? एंड एट द लास्ट कंक्लूजन क्या होगा वो आपको सोच के लिखना है. क्या आप कर लोगी ये? कर लोगे सारे बच्चे? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है. मैम नोटबुक में लिखना है. हाँ जी, नोटबुक में लिखना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह बहुत कम है. You have seen that on page number 21, a small space is given. In that space, all the 4 girls' conversation cannot fit. हेलो. प्रथम, पर मैम आप तो सारी एक्सरसाइज के आंसर वो क्या कहते हैं ग्रुप में भेजने वाले थे, भेजे नहीं है मैम अभी तक. अरे बच्चा आप खुद कीजिए ना. कौन सी मैं एक्सरसाइज के भेजूं? पर मैम भेजो ना तो मैम. सारी एक्टिविटीज 10, 9, 11. that means all conversation. हमने तो कर भी दी. These all are हमने नहीं activities करी बच्चा. भाई. I'll try because ये तो सारी एक्टिविटीज हैं. मैम हमने तो कर भी दी. अच्छा चलिए, एक्टिविटी नंबर 9 ग्रामर होता है. क्वेश्चन आंसर सब देन आई कैन से, बट दीज ऑल आर एक्टिविटीज व्हिच यू हैव टू इमेजिन एंड डू. आपको सोच के खुद बना के लिखनी है ये, ठीक है? हाँ जी. अब एक्टिविटी नंबर 9 में आ जाएंगे. रीड द आर्टिकल केयरफुली. मैम हाँ बोलिए. मैम एक्टिविटी नंबर 5 तो आपने करवाई थी ना? 9. हाँ जी, स्टार्ट किया था हमने, लेकिन वी हैव डन इट हाफ डन. आधी की थी हमने, ठीक है? यस. सो वी विल Ma'am. स्टार्ट अगेन. मैम बोलिए जिया. मैम एग्जाम में लिटरेचर कितना आएगा? जी मैं बताती हूँ आपको, पूरा पेपर पैटर्न में आपको बता देती हूँ, ठीक है? ओके मैं मैम. पहले ये कंप्लीट कर लूँ आपका, फिर मैं आपको बता देती हूँ. लेट अस सी नाउ.
5 things we still don't know. You may think that teachers, scientists, and doctors must know everything important that there is to know, but it is not true. हमें ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स को, साइंटिस्ट को और डॉक्टर्स को सब जानकारी होती है, बट इट इज नॉट ट्रू. They are also human beings. They are also means such people who don't know many of the things. ठीक है? The job of many teachers, scientists, and doctors is to do research, to learn more and more about the world. So, what is their job? Their job is to teach. Their job is to teach. Their job is to do research, do experiments, right? And conduct many of the surveys, and then means implement theories. Okay, practicals, all these things they do. But there are many such puzzles which are not yet being solved, and the writer of this lesson wants us to get indulged in this and to solve the problems if we could. ठीक है? अब वो कौन कौन सी ऐसी पजल्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं की गई हैं, तो वो पहले पजल्स या प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं. लेट अस सी. So here are some things we still don't know. What are these things we don't know yet? So the first is doctors and scientists are constantly working to solve medical problems so that people can live longer, healthy lives. But some mysteries aren't about deadly diseases. We still don't know why humans blush. Blushing seems to have no advantage to the human body. अब बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि वो हमें भी नहीं पता है कि आखिर वो होती क्यों हैं. बीमारियां हैं ऐसी हैं या आदतें ऐसी हैं. ठीक है? मीन्स आप देखोगे कि किसी किसी को घड़ी घड़ी आंख बंद करने की आदत है. मीन्स हर एक सेकंड में या हर एक सेकंड में 3-4 बार ऐसे पल के झपकाएंगे. ठीक है? या तो वो बातों बातों में मीन्स हंस देंगे, कोई भी बात नहीं हो फिर भी हंस देंगे. वो मीन्स वो ह्यूमन नेचर ही होता है. ऐसा क्यों होता है हमें भी नहीं पता. ये तो आपने देखा होगा कुछ लोगों ने ये थम सक करते हैं. मीन्स इवन दे आर ग्रोन अप, ये बड़े भी हो जाते तो भी उनको ये आदत नहीं छूटती थम सक की. तो ऐसा क्यों है? ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां या आदतें ऐसी हैं कि हमें नहीं पता है कि ऐसे क्यों करते हैं लोग. ठीक है? और शर्माते क्यों हैं लोग, कि आपको अचानक से किसी बात पे शर्म क्यों आ जाती है कि आपको ये काम नहीं करना है या वो काम नहीं करना है. ठीक है? या तो फिर आपको यू फील अशेम्ड, यू फील सॉरी फॉर, यू फील डिसमेड फॉर इट. व्हाई डू यू फील हैप्पी? आप रो क्यों रहे हो? मीन्स व्हाट इज दैट एग्जैक्टली इन योर बॉडी. ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि ह्यूमन बॉडी में होती हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं या हमें वो पता ही नहीं कि ऐसा होता क्यों है. ठीक है? या कोई शर्म के मारे वो बीमारी बताना नहीं चाहता है लोगों को. ठीक है? Next is doctors, scientists, psychologists, and theologians. So I've explained you who are theologians. Theologians कौन होते हैं उस दिन मैंने बताया था आपको. Yes. तो थियोलॉजियंस वो एक्सपर्ट्स होते हैं जो गॉड के बारे में रिसर्च करते हैं. गॉडली थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, मीन्स जो भी रिलीजियस बिलीव्स होती हैं, है ना, सुपरस्टिशंस होती हैं, उन पे रिसर्च करते हैं थियोलॉजियंस. कि भगवान ने कभी सृष्टि का निर्माण किया एंड ऑल दोज थिंग्स. क्या कौन आया पहले, इंसान आए, जानवर आए, ट्रीज आए, प्लांट्स आए, सूर्य आए, चंद्रमा आया, कौन आया. ऑल these are comes under theology. Okay, so to find about God, the religious beliefs, to find about nature, natural things, this is the work of theologians. ठीक है? समझ में आया? वो सारे experts जो हैं and others have been interested in our dreams. ये सभी को पता करना है, इन सभी को ये बातें पता करनी कि हम सपने क्यों देखते हैं. Why do the human beings dream? But still we do not know why people dream. पर अभी तक हमें नहीं पता चला कि आखिर हम सपने देखते क्यों हैं. Recent research suggests it help us deal with emotions. एक जब ये रिसर्च की गई थी तो उसके द्वारा हमें इतना पता चला कि उसकी वजह से हमारे इमोशंस को डील करने में मदद मिलती है.
कि आप आपके इमोशंस किस तरह से कंट्रोल कर सकते हो या आपके इमोशंस किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, वो हमें ड्रीम्स से पता चल सकता है। ठीक है, वो उन्होंने ये साइंटिफिक रिसर्च की थी। बट वाई डू स्टिल पीपल ड्रीम वी डोंट, कि आखिर ड्रीम देखते क्यों हैं वो नहीं पता। ठीक है, in 1912 a manuscript was found that is believed to be from the years 1404 to 1438. It is filled with strange plants and drawings and writing. It is called the Voynich manuscript and its language is completely unknown. Want to speak anything, please put your audios on mute because I can hear humming sound. Even some technical issues are also there. Here, Tucker, please put your audio on mute. Vyom Trivedi. व्योम त्रिवेदी म्यूट पे रखो। क्या आप हो? क्या व्योम तेरा म्यूट कर रहा है? One minute. Okay, let us see now. Yes. 1912 1912 में एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी गई थी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है कि हाथ से एक डॉक्यूमेंट लिखी गई थी मैन्युअली, नॉट प्रिंटेड बट जस्ट मैन्युअली हाथ से लिखी गई है। वो जब भी प्रिंटिंग के लिए भेजी जाएगी तो वो मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं देगी, फिर वो प्रिंटेड फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट वॉज फाउंड दैट इज बिलीव टू बी फ्रॉम ईयर्स। एक जो डॉक्यूमेंट मिली थी वो ऐसा माना जाता था कि वो डॉक्यूमेंट 1404 से लेकर 1438 मीन्स वो 34 ईयर्स तक वो लिखी गई थी या उस पीरियड के बीच में कभी लिखी गई थी। ठीक है, और उस मैन्यूस्क्रिप्ट में, उस डॉक्यूमेंट में कुछ स्ट्रेंज प्लांट्स हैं, अलग ही कुछ प्लांट्स हैं, अलग ही कुछ एनिमल्स हैं। भव्य, आर यू पेइंग अटेंशन? Yes. ओके, सो एंड ड्राइंग्स एंड राइटिंग्स, उसमें कुछ अलग ही कुछ भाषाएं लिखी गई हैं, राइटिंग्स हैं, कुछ अलग ड्राइंग्स हैं, कुछ अलग ही प्लांट्स हैं जो अभी तक हमें पता नहीं चले कि वो कौन से प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। ठीक है, उसे जो उस मैन्यूस्क्रिप्ट का नाम है उसे बोला गया है वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट। उसे वॉयनिच मैन्यूस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है, उसको बुलाया जाता है। एंड इट्स लैंग्वेज इज कम्प्लीटली अननोन, कि कौन सी भाषा में लिखी गई है वो भाषा भी हमें नहीं पता। In 1977, researchers received a radio signal from a part of space that no human has ever been. Means 1977 में रिसर्चर्स को एक सिग्नल, रेडियो सिग्नल स्पेस से मिला। कभी 1977 में। वो रेडियो सिग्नल कहाँ से आया, कैसे आया, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। The signal lasted 72 seconds and appeared to be intentional. कि वो 72 seconds तक रेडियो सिग्नल 77 में 72 seconds तक वो रहा था और वो इंटेंशनल था। ठीक है, इंटेंशनल मीन्स उसका क्या मीन्स, कुछ तो अपीयर टू भी कुछ ऐसा पर्पस था, वो सिग्नल का कुछ पर्पस था। इट्स नोन एज द वाव सिग्नल, उस सिग्नल को वाव सिग्नल के नाम से जाना जाता है, बिकॉज द रिसर्चर ऑन ड्यूटी पुट वाव ऑन द प्रिंट आउट दैट शोड द सिग्नल। वहाँ पर जो रिसर्चर था जब ड्यूटी पे था और जब भी उसने सिग्नल को नोटिस किया तो उसने बोला कि वो जो सिग्नल है वाव सिग्नल है। मीन्स ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट कम्प्लीटली बट ही हैज जस्ट एक्सप्रेस्ड इन दीज 3 लेटर्स कि वो बहुत ही अच्छा सिग्नल था। सो इट वॉज टर्म्ड एज वाव सिग्नल, उसका नाम भी वाव पड़ गया। द सिग्नल हैज नेवर बीन रिपीटेड और एक्सप्लेन्ड, तो वो सिग्नल को
आज तक किसी उस सिग्नल के बारे में किसी ने खोज ही नहीं की, ना ही जानने की कोशिश की, ना ही एक्सप्लेन किया। ठीक है, We still don't know very much about the deepest part of the ocean. अभी तक ओशन का एकदम डीपेस्ट पार्ट में क्या है अभी तक किसी को नहीं पता। The first dive to the deepest point, 7 miles below the surface, was only made last year. अभी लास्ट ईयर में ही 7 miles. What is 7 miles? 1 माइल में कितना होता है? ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर के 1 किलोमीटर 600 मीन्स मीटर्स ऐसे होते हैं, 1.5 किलोमीटर समझ लो। तो 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोमीटर्स। तो आपका 7 माइल्स हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 10 to 12 10 आप पकड़ लो है तो हाँ जी, तो 10 किलोमीटर्स तक आप पकड़ लो कि 10 किलोमीटर्स हो सकती है। तो 10 किलोमीटर्स तक जो डाइव की गई थी अभी लास्ट ईयर, जो उन्होंने 10 किलोमीटर्स तक अंदर डाइव की थी। Oceanographers estimate that for every species of animal we know about in the ocean, there may be 2 or 3 that we don't know about. ओशनोग्राफर्स मीन्स जो ओशंस पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है, टाइड्स पे, वेव्स पे, वाटर पे जो रिसर्च करते हैं ओशन के रिलेटेड चीज़ों से। ठीक है, व्हाट वी एस्टिमेट दैट फॉर एवरी स्पीशीज ऑफ एनिमल वी नो अबाउट इन द ओशन, कि हर एक प्रकार का जो प्राणी उस ओशन में रहता है, there may be 3 or 4 that we don't know about. ऐसे हैं, उनमें भी स्पीशीज इतनी सारी हैं कि उनमें से अभी तक 3-4 की स्पीशीज क्या है हमें नहीं पता। हर एक स्पीशीज में से 3-4 की स्पीशीज हमें पता ही नहीं है, कि जब भी वो डाइव करके रिसर्च करके आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अलग ही कोई और स्पीशीज या कोई और एनिमल उसी सेम लेवल का, उसी सेम कैटेगरी का आ गया। जैसे फिश का ही, फिश की भी स्पीशीज बहुत होती हैं, तो whenever they go inside they find कि 3-4 न्यू फिशेस आ गई हैं, उनकी न्यू स्पीशीज आ गई है। ठीक है, as you get older and learn more that what mysteries might you help solve, कि आप बड़े हो जाओगे तो इनमें से कौन सी मिस्ट्री आप सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, दैट इज पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, आपके हिसाब से आप आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए, now let us move. Now how much time is left? Almost 15 minutes, 14 minutes. 10 minutes. Okay, 10 10 minutes. minutes are left. Right. Activity number 10. Yes, only this much is there. So shall we complete this part? Often when we try to answer a big question, we need to find out the answers to lot of smaller or simpler questions first. कभी कभी हमें बड़ी जानकारी पाने के लिए छोटी छोटी जानकारी पाना बहुत ज़रूरी होता है, तो ही आपको बड़ी जानकारी पा सकते हैं। सच है ये? Is it true? If you want to know something big question, something big, for that you have to find out for small answers. आपको पहले छोटे छोटे आंसर्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो जाके आप बड़े क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे होता है ना बहुत बार, है ना जी? ठीक है। For example, scientists working on ways to provide people with clean drinking water might need to know a few things first. अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि साइंटिस्ट्स को ये पता करना, पहले छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि लोगों को अभी तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें जानने के बाद ही वो कुछ बड़ा कंक्लूजन लेके आ सकते हैं। How much fresh water is in the ground? कि लोगों को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, इसके पहले ये क्वेश्चंस उनको सॉल्व करने। कौन से क्वेश्चंस हैं देखिए हम। प्रथम पटेल, अगेन ही वेंट समवेयर। Yes, ma'am. मैम नहीं है। From next time मैम onwards, प्रथम, भव्य।
Away is also not there. No, Okay, ma'am. then from next time onwards I'll not मैम हर take क्लास your में name. ऐसा करते हैं. ठीक है, उन्हें बाहर ही रहने दीजिए, नेक्स्ट पीरियड से मैं लूंगी ही नहीं. And Vyom is also not there. कैसे किया था? जी ठीक है. अब इन साइंटिस्ट्स को पहले ये छोटे छोटे क्वेश्चंस Ma'am. फाइंड करने हैं. हाँ बोलिए. मैम प्लीज आप पेपर पैटर्न बताओ ना अभी. हाँ जी, पहले मैं ये इतना डिस्कस कर लूँ. ओके. Put your audios on mute. How many people need access to the water? कितने लोगों को पानी की समस्या है और जरूरत है? परिता आपको ऑडियो सुनाएंगे. What bacteria or pollution is affecting the water? कौन सा बैक्टीरिया पानी को खराब कर रहा है? How much money is needed to clean the water? कितना पैसा चाहिए आपको उन लोगों को पानी क्लीन करने के लिए? How can the clean water be distributed to the people who need it? कि ये पानी किस तरह से उन लोगों तक पहुंचाया जाए? Look again at the article 5 things we still don't know. With a group, pick the mystery that interests you most. Work with your group to think of 5 questions about the mystery that the researchers should try to answer as they try to solve the puzzle. Try to be specific in the questions and to think of which things the researchers might need to know in order to learn. अब ये है ग्रुप एक्टिविटी, पर मैं कहूँगी कि आप खुद ही कर लीजिएगा, अकेले कर लीजिएगा. आप इन 5 में से कोई भी एक मिस्ट्री ले लीजिए. थिंग्स वी स्टिल डोंट नो में से 5 आपके पास मिस्ट्रीज दी गई हैं, उसमें से कोई भी एक मिस्ट्री लीजिए और उसके बेस पर 5 क्वेश्चंस बनाइए. ठीक है, जो आपको जानने हैं. उस मिस्ट्री पे आपको और 5 क्वेश्चंस आपके मन में कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं जो फाइंड करने चाहिए, और वो 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में लिखने हैं. ठीक है, आई बात समझ में? मैं फिर से दोहरा रही हूँ. इस मिस्ट्री में से, इन 5 मिस्ट्री में से कोई भी एक मिस्ट्री लीजिए, उस मिस्ट्री पे 5 क्वेश्चंस आप बनाइए और यहाँ पर लिखिए. ठीक है, कि आपको और उस मिस्ट्री के लिए क्या जानना है. अंडरस्टूड? जैसे मैंने फर्स्ट का एग्जांपल दे दिया कि लोग शर्माते क्यों हैं. फिर मैंने आपको बोला था कि लोग why do they blink eyes, they blink their eyelids several times. ठीक है, they have the habit of that. Then why do people suck their thumbs? Many people they suck their thumbs. ठीक है, कुछ लोग पैर हिलाते हैं जब भी नर्वस हो जाते हैं. क्यों ऐसे करते हैं? तो there are many questions which will pop up in your mind. तो आपको जो questions चाहिए वो लिख लीजिए. Are we done with it? Unit number 2 खत्म. खत्म. यस मैम. अब मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में क्या क्या एक्सपेक्टेड है. तो एक पैसेज है, पैराग्राफ आ जाएगा. ठीक है, मैम स्क्रीन शेयर करके लिख के भेजो ना. नहीं मैं ओरली बता देती हूँ बच्चा को. स्क्रीन शेयर नहीं करूँगी, ओरली बता देती हूँ आपको. पर मैम आप लिख के भेजो तो स्क्रीनशॉट भी पैटर्न एक्चुअली सचिव बताऊं कि वो तो 25 मार्क्स का है. तो 25 मार्क्स में ऐसे आज सच पैटर्न वोंट बी देयर फॉर यू. ठीक है, तो मैं आपको रफ पैटर्न